Good morning, students. I am fine, and I hope that all of you will be fine. Once again, I am here before you with a new topic in history, and your today's topic is the unification of Italy. In previous class, you had read the unification of Germany, in which condition the unification of Germany completed, by whom the unification of Germany completed, who had played crucial role to unify Germany, which were obstacles to the unification of Germany, and you had find the answer of these questions that Otto von Bismarck, a Prussian chief minister, had played a crucial role to unify the Germany by the help of the Prussian king Kaiser William I. He had fought 3 wars in 7 years with Austria, Denmark, and France, and completed the unification of Germany in 1871. And it means Prussian chief minister Otto von Bismarck had played a crucial role to the unification of Germany. Same like in this topic or today's class, you will find the answer of the unification of Italy, or you will know how did the unification of Italy complete by the help of some personalities. But for boost up your mind, for develop your moral, some lines from here. क्या समेटेगा वक्त का एक गहरा दरिया, क्या समेटेगा हमें वक्त का एक गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं, गर सीधी हाथों ने खींची है लकीरें टेढ़ी, गर सीधी हाथों ने खींची है लकीरें टेढ़ी, उस लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं. आप समझ गए होंगे. दीज लाइन्स आर told in the adverse condition of this time. इस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, HW बना रहे हैं, यही काफ़ी है. और जितना से जितना होमवर्क हो, आपका असाइनमेंट हो, आप बनाएं. और कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, फील करते हैं, डायरेक्टली कॉल मी. आई एम रेडी टू solve your problem anytime. Okay, now let's come on your today's topic, Italy unified, or the process of the unification of Italy. You should take a book and open page number 20. Page number 20. Here your book, page number 20, the Italy unified, page number 20 or 21. You will read now. Dear students, the process of the unification of Italy is as similar as the process of the unification of Germany. Like Germany,
was divided into 39 parts, and one part of Germany, Prussia, had played a crucial role to unify the Germany. In the case of Italy, Italy was also divided in 7 parts. Divided in 7 parts. And only one part of Italy was Sardinia. Piedmont was ruled by only Italian states, and rest were ruled by other dynasties or the kings and the rulers and other countries. So like Prussia played a crucial role to unify Germany. In the case of Italy, Sardinia Piedmont played a crucial role to unify Italy. How? According to your book, open your book, page number 20, and listen and watch both. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा राजनीतिक इतिहास है विखंडन की प्रक्रिया का। जैसे जर्मनी बिखरा हुआ था कई भागों में, वैसे ही इटली भी 7 पार्ट्स में बटे हुए थे। इटालियन वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक states as well as the multinational हैब्सबर्ग एम्पायर। इटली के जो 7 पार्ट्स थे वो हर पार्ट्स में अलग अलग राजा राज करते थे और सब जगह दूसरे देशों का शासन था। नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, मिडिल में अलग, सब जगह अलग अलग था। तो ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मध्य में इटली वॉज डिवाइडेड इन 7 स्टेट। इटली 7 भागों में बटा हुआ था। ऑफ विच ओनली वन, जिसमें से केवल एक, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। 7 में से केवल एक ही ऐसा रीजन, भाग, प्रोविंस था जो इटली मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ का अपना जो ओन पब्लिक है वहाँ के द्वारा शासन होता था। बाकी जगह पर दूसरे देश का शासन था वहाँ पे। तो जैसे द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। इटली का उत्तर भाग हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया के द्वारा रूल होता था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, और उसका जो मध्य भाग था पेपल भाग था। आप देख सकते हैं इसके जो सब भाग थे यहाँ पे पेज नंबर 21 में और फिगर 14A में। यहाँ जो भाग हैं इसके मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, जिसे बोथ सिसिलीज भी कहा जाता है, पेपल स्टेट पेपल, सैन मैरिनो, टस्कनी, मोडेना, परमा, मोनाको, शेविये, सार्डिनिया, यही सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। दीज आर द पार्ट ऑफ Italy that time scattered in these provinces or the regions Italy that time। तो उसका जो मध्य भाग था, once again the north was under Austrian Habsburg। उत्तर भाग ऑस्ट्रिया का शासन था उस पर, उत्तर भाग पर। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। मध्य भाग जो था वह पोप कलर्जी के द्वारा रूल होता था। एंड सदर्न रीजन्स वे अंडर द डोमिनेशन ऑफ बुर्बो किंग ऑफ स्पेन, और जो
दक्षिणी भाग था वह स्पेन के बर्बो किंगडम के द्वारा शासन वहाँ पे होता था, वह रूल होता था। मतलब नॉर्थ अलग, मिडल सेंटर अलग, साउथ अलग, अलग अलग जितने भी भाग सब अलग अलग देशों के द्वारा रूल होते थे। इसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट इटली के शासक के द्वारा रूल होता था। एंड इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट अक्वायर्ड वन कॉमन। पूरे इटली में इटली का ओन लैंग्वेज इटली भी सभी जगह नहीं बोला जाता था। फ्रॉम एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, और हर जगह डायलेक्ट्स थे, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेज यूज किए जाते थे। जो ओन और मेन लैंग्वेज था इटली का वह बहुत कम जगह बोला जाता था, यूज में लाया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। ऐसी स्थिति थी इटली की। So you write a question from here. Your question is, what was the condition of Italy? What was the condition of Italy before the unification? What was the condition of Italy before the unification? Now, from second paragraph, ड्यूरिंग द 1830s, 1830 के काल में से आगे जोसेपे मेजिनी, you have read about Giuseppe Mazzini in previous topic, revolutionaries. Giuseppe Mazzini was the greatest patriot, freedom fighter of the world, and he had played a crucial role to unify the Italy. He had formed two secret societies, Young Italy and Young Europe, for spread his goal in other countries. उसने कहा था कि यदि समाज में बदलाव चाहते हो, यदि समाज में बदलाव लाना है, समाज में क्रांति लानी हो, तो तलवार युवाओं के हाथ में दे दो, क्योंकि नहीं बच्चे और नहीं बूढ़े क्रांति कर सकते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा भी है कि पुरानी रोशनी में और नई रोशनी में फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कश्ती नहीं मिलती और उसे सहारा नहीं मिलता। समाज में यदि बदलाव लाना है तो तलवार जो है युवाओं के हाथ में देना होगा। यह खुद जोसेपे मेजिनी ने कहा था। तो वही जोसेफ मेजिनी, ड्यूरिंग द 1830s, Joseph Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. 1830s के दौरान जोसेपे मेजिनी ने इटली के एकीकरण पर जोर दिया और एक विचार उसके मन में आया और वह ट्राई किया, कोशिश किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली का पहली बार 1830, मतलब 1830 के बाद चाहे 34, 35, 31 ऐसे वह किया था। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज, उसने कई सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, कॉल्ड यंग इटली, यंग यूरोप, फॉर द डिसेमिनेशन, प्रसार, फैलाने के लिए, स्प्रेड। तो अपने डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल, अपने उद्देश्यों को फैलाने के लिए उसने सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की थी जोसेपे मेजिनी ने, यंग इटली और यंग यूरोप को। द फेल्यूर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, जब उसकी जो ट्राई थी, उसकी कोशिश फेल हो गई इन 1831 में, एंड 1848 दोनों बार, 1831 और 1848 दोनों बार उसने ट्राई किया और दोनों बार वह फेल कर चुका और यूनिफिकेशन ऑफ इटली वह नहीं कर सका। तब मिंट दैट
द मैंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमांट, तब उसकी कोशिश जब बेकार गई, तब यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली फेल ऑन द शोल्डर ऑफ सार्डिनिया पिडमांट। जब जोसेपे मेजनी की कोशिश फेल हुई, तब सार्डिनिया पिडमांट के कंधों पर यह जिम्मेवारी आ गई कि कैसे इटली का एकीकरण किया जाए। और तब अंडर द रूलर विक्टर एमेनुअल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स, उस समय विक्टर एमेनुअल सेकेंड सार्डिनिया पिडमांट का रूलर था, उसने यह रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं इटली का एकीकरण करूँगा थ्रू वॉर, युद्ध के द्वारा। इसने भी यह डिसीजन लिया। इन द आई ऑफ द रूलिंग एलिट ऑफ दिस रीजन, उस सार्डिनिया पिडमांट के जितने भी एलिट लोग थे और लिटरेट पर्सन थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, उनकी नज़र से विक्टर एमेनुअल सेकेंड ने ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विक्टर एमेनुअल सेकेंड को भी लगा कि यदि इटली का यूनिफिकेशन होगा तो हमको भी इकोनॉमिक आर्थिक विकास होगा, और वहाँ के जो लोग थे भी यह चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और यदि बाय द हेल्प ऑफ सार्डिनिया पिडमांट यदि इटली यूनिफाइड होता तो सार्डिनिया पिडमांट का प्रभुत्व पूरे इटली में होता। तो इसने इसीलिए खुद यह जिम्मा लिया कि मैं इटली का एकीकरण करूँगा। और तब चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर, ऐसे इसका पूरा नाम था काउंट डिला कैवर, he was chief minister, you can say that prime minister like Prussian chief minister Otto Bismarck। तो ये भी ऐसा ही था। चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर हु लेड द मूवमेंट, इस आंदोलन को इसने जो आगे बढ़ाया वह सार्डिनिया पिडमांट का चीफ मिनिस्टर था काउंट डिला कैवर। टू यूनिफाई द रीजन्स, इटली वॉज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नोर ए डेमोक्रेट, यह नहीं, ये जो कैवर था वह नहीं एक क्रांतिकारी था और नहीं उसे लोकतंत्र में विश्वास करता था, फिर भी उसने इटली को यूनिफाइड करने का जिम्मा लिया। कहते हैं लाइक अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन की तरह, और मतलब और धनी और पढ़े लोगों की तरह ये भी फ्रेंच मच बेटर देन डिड इटालियन, इटली के लैंग्वेज से ज़्यादा बढ़िया यह फ्रेंच लैंग्वेज जानता था। नहीं क्रांतिकारी था, नहीं लोकतंत्र में विश्वास करता था, नहीं बहुत बढ़िया इटली का लैंग्वेज बोलता था, उससे बढ़िया फ्रांस का जो लैंग्वेज था फ्रेंच बोलता था, फिर भी ही टुक द चार्ज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काउंट कैवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमांट, उसने यह जिम्मा लिया थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, एक चतुर कूटनीति के संधि के द्वारा, विथ फ्रांस के द्वारा एक संधि किया। इंजर्ड बाय कैवर के द्वारा यह संधि किया गया। एंड सार्डिनिया पिडमांट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वह ऑस्ट्रिया था, और इसने सार्डिनिया पिडमांट के चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर ने फ्रांस के साथ एक संधि किया और दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा दिया, ये काम किया। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर
of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. इसके अलावा Giuseppe Garibaldi, he was also the greatest freedom fighter, patriot of Italy, और बाकी का काम गैरीबाल्डी ने किया. He was also the member of Secret Society Young Italy, और he formed other secret society. उसने भी एक अपना सेक्रेट सोसाइटी बनाया था. तो उसके भी जो जितने जो मेंबर थे सब मिलकर बाकी का काम किया. तो उसने in 1860 they marched into South Italy by the support of the peasant in order to drive out the Spanish ruler. जो मध्य भाग था जहाँ पर स्पेन के बुर्बो किंग का जो राज था वह वहाँ के लोकल पीजेंट और अपने मेंबर के द्वारा उस वहाँ पे अटैक किया. और अटैक करने के बाद उस स्पेन के बुर्बो किंग को रिमूव किया, वहाँ वह उसे हटा दिया. इन 1861 में एंड विक्टर एमेनुअल वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. इस प्रकार 1861 में सार्डिनिया पिडमांट का जो रूलर था विक्टर एमेनुअल सेकेंड को पूरे यूनिफाइड इटली का रूलर घोषित कर दिया गया, घोषणा किया गया. एंड नाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ जिउसेप्पे मैजिनी, विक्टर एमेनुअल सेकेंड, काउंट डिला केउर एंड जिउसेप्पे गैरीबाल्डी. तो ये आज आपका टॉपिक था यूनिफिकेशन ऑफ इटली. आप समझ गए होंगे जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया गया वैसे इटली का भी यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ. एक बार पुनः आई वांट टू रिक्वेस्ट दैट राइट ए क्वेश्चन फ्रॉम हियर. योर क्वेश्चन इज explain the process of the unification of Italy. Explain the process of the unification of Italy. Now I want to request that you complete all HW in videos, and I will send you on your WhatsApp. So complete in note copy all the questions. Thank you. Have a nice day.